So class, a very good morning to all of you. As you know, yesterday we have started the topic chemical coordination. So in the topic chemical coordination, we have studied that different organs of the body, they coordinate with one another in the form of chemicals. So different organs secrete the different kinds of chemicals to give signals. है ना? So those chemicals are known as hormones. So what are hormones? Hormones होते क्या हैं? They are basically proteins. है ना? Proteins which give signals to the other organs. उन proteins को हम क्या बोल देते हैं? Hormones. And the organs which secrete the hormones, they are known as glands or the endocrine glands. So endocrine glands are those glands which secrete the chemicals. है ना? तो वो अपनी secretions जो है वो blood में pour करेंगे and through the blood they will move to the target region. Clear है यहाँ तक? Endocrine. Exocrine glands क्या होते हैं? Duct glands. These are known as the ductless glands. Why they are ductless? Another reason. हाँ, because उन्हें ducts की जरूरत नहीं है. They secrete the secretions and pour them into the blood. उनकी जो secretion है वो blood के through move कर रही है body में. ठीक है? So that's why they don't, उन्हें जरूरत ही नहीं है ducts की. Clear है? Heterocrine glands जिनके पास ducts भी हैं और जो secretions भी करते हैं. For example, pancreas. तो हमारा pancreas रहता था ना? Clear है? So the next gland or organ is pancreas. So हमने study किए थे thyroid, thyroid gland, parathyroid, adrenal gland, hypothalamus, pituitary gland, ये सारे हमने स्टडी कर लिए थे. थायराइड ग्लैंड will control the metabolic rate of the body, है ना? उसने hormones कौन से secrete करने? Thyroxine hormone and the calcitonin hormone. The main function of the thyroxine hormone is to control the metabolic rate and the function of the calcitonin is to control the calcium level in the blood. है ना? जब भी calcium level जो है वो increase होगा, ये secrete करेगा calcitonin to inhibit the release of the calcium ions. नेक्स्ट इज द पैराथायराइड. पैराथ हार्मोन सीक्रेट करेगा जब भी कैल्शियम का लेवल लो होगा या इंक्रीज होगा. ठीक है? तो वो उस अकॉर्डिंगली क्या करेगा? कैल्शियम आयंस को कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट इज द एड्रीनल ग्लैंड. कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेगा. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं. मेडुला सीक्रेट करेगा एपिनेफ्रिन एंड हाइपोथैलेमस दे विल रिलीज द हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा रिलीजिंग फैक्टर्स. वो रिलीजिंग फैक्टर्स जाके स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. रूम नंबर So the next organ is pancreas. Pancreas is the heterocrine gland. Heterocrine means उसके पास ducts भी हैं और duct secretions भी produce करेगा. Clear है? So pancreas में different kinds के जो आपके cells हैं present in the pancreas. These are islets of Langerhans, islets भी बोल सकते हो, islets भी बोल सकते हो. ठीक है?
इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ये आपके लार्ज साइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द पेनक्रियास। हाँ, the lining of the pancreas contains other different kinds of cells known as alpha cells, beta cells, and delta cells. Okay. So these are your alpha cells और beta cells हैं जो आपके secrete करते हैं glucagon and the insulin, और delta cells secrete करते हैं somatostatin. So the two main somatostatin, the two main जो आपके main hormones हैं जो pancreas secrete करता है, these are glucagon and insulin. What is the main function of the glucagon? It is secreted by the alpha cells, है ना. So ये क्या करेगा आपका formation of glucose from the different sources. Okay, so it will increase the glucose level in the blood. जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लो लेवल है, ग्लूकागोन ग्लूकोज फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा. हमने ग्लाइकोजन स्टडी किया ना, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज. ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस. इट विल हेल्प इन द टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस. That means lysis of glycogen lysis of the glycogen or the breakdown of the glycogen with the help of the glucagon. जब भी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल लो होगा, ग्लूकागोन सिक्रेट होगा, ग्लाइकोजन पर एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन करवाएगा ग्लाइकोजन की टू रिलीज द ग्लूकोज इन द ब्लड, सो दैट कि आपका जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो मेंटेन रहे. क्लियर है? So this is the functioning of glucagon. Next is the insulin. Insulin is secreted by the beta cells. So the main function of the insulin is to decrease the sugar level in the blood. Decrease the blood sugar or glucose level. जब भी ग्लूकोज का लेवल हाई है, इंसुलिन सीक्रेट होगा और इट विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज. क्लियर है? सो ये दोनों आपस में क्या एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट वर्क है. क्लियर? ग्लूकागोन एंड द इंसुलिन. अब अगर बॉडी में ग्लूकागोन की सिक्रेशन ज्यादा हो गई है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया जब भी आपके, हाँ, हाइपर मीन्स ज्यादा लेवल, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के आगे हाइपर दैट मींस इंक्रीज्ड लेवल ना. ग्लाइसीमिया इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. जब ये सिचुएशन आपकी अराइज हो जाए बॉडी में, तो वो होगी किसकी वजह से? ग्लूकागोन. अगर आपका ग्लूकागोन ज्यादा बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, सो दैट मींस कि ब्रेकडाउन होगी, डिफरेंट सोर्सेज जो आपके प्रेजेंट है फूड के, उनकी ब्रेकडाउन होगी और दे विल अल्टीमेटली फॉर्म द ग्लूकोज. तो आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो राइज करेगा. इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया. एंड दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द increased secretion of the glucagon. Hypoglycemia. आप ये भी बोल सकते हो कि हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकागोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट हो रहा है एंड इंसुलिन जो है उसकी कम प्रोडक्शन हो रही है ना, बिकॉज इंसुलिन ने क्या करना है. क्लियर? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स लो अमाउंट. क्लियर है? जब आपका इंसुलिन का लेवल कम, हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर लेवल, लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, नॉर्मल से कम है.
अब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे हो सकता है? यहाँ तो आपका इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, यहाँ तो आपका ग्लूकागोन जो है वो कम सीक्रेट हो रहा है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। दोनों फैक्टर्स इसी के लिए करेंगे वर्क। दोनों सिचुएशन में क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आएगी। बिकॉज अगर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ दैट मीन्स उसने क्या करवाना है? ब्लड ग्लूकोज की जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में उसको डाइजेस्ट करवाना, उसकी ब्रेक डाउन करवानी है। दैट मीन्स कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा। ग्लूकागोन ज्यादा ग्लूकागोन की कम सिक्रीशन है तो दैट मीन्स कि आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा दूसरे जो भी आपके फूड सोर्सेज है। ठीक है, तो ब्लड में जो आपका ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा? लो। ठीक है, दिस इज नोन एज द हाइपोग्लाइसीमिया। एक और मेन जो डिसीज है इंसुलिन की प्रोडक्शन ना हो तो होती है, कौन सी है? हाँ, डायबिटीज। सो व्हाट इज डायबिटीज? When this situation arise, diabetes when there is high blood glucose level, high glucose level in the blood. Hmm. Or you can say that the abnormal blood sugar level. अब डायबिटीज दो तरह की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। पता है? टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1, टाइप 2। जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज है इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। जो टाइप 2 है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। बिकॉज हमें पता है पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन ने जाके ग्लूकोज पर एक्ट करना है। ठीक है, ये तो सिंपल केस है जो नॉर्मल है। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में दैट जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो रहा है। ग्लूकागोन अपनी स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन हो नहीं रहा। जो ग्लूकोज आपकी ब्लड में प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर कोई एक्ट करने वाला नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है ब्लड में। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो राइज कर जाता है। क्लियर? ये टाइप 1 डायबिटीज। उसमें क्या होता है? हम नॉर्मली बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट में सो दैट कि उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। क्लियर? सो दिस इज टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट। दूसरा होता है टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स इस केस में क्या होता है? आपका इंसुलिन नॉर्मल फॉर्म में या नॉर्मल अमाउंट में जितना प्रोड्यूस होना हो रहा है वो हो रहा है, बट योर लिवर सेल्स आर नॉट एबल टू टेक अप दैट इंसुलिन। होता क्या है? इंसुलिन ने कहाँ पे जाके एक्ट करना है? इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, सो ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? लीवर। लीवर स्टोर्स द फूड और ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये जाएंगे लीवर सेल के पास, वहां पे जाके एक्ट करेंगे और ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करेंगे टू फॉर्म द ग्लूकोज। अब लीवर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस है। कोई भी हार्मोन एक्शन कैसे करते हैं? हार्मोनल एक्शन में हम यही स्टडी करते हैं ना कि हर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसीव करेंगे हार्मोन्स को, जो बाइंड करेंगे। दीज रिसेप्टर्स विल बाइंड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। जो भी इनके कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स होंगे उनके साथ बाइंड करेंगे, तभी एक्शन होगा हार्मोन्स का। तो ये जो इंसुलिन है ये बाइंड करेगा रिसेप्टर्स। सो इस केस में क्या होता है? लीवर सेल के जो रिसेप्टर्स हैं दे आर नॉट एबल टू बाइंड विद द इंसुलिन। इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है बट लीवर सेल्स जो है वो उसके साथ बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। अब इंसुलिन को इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें बिकॉज इंसुलिन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज। वो तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाली सिचुएशन किसके कारण आ रही है? ड्यू टू द डिफेक्ट इन द liver cells or the receptors of the liver cells.
बिकॉज उनमें बाइंडिंग नहीं हो रही है. ग्लूकागोन इंसुलिन जो है वो नॉर्मल अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्लियर है ये बात? सो टाइप 1 जो है वो तो नॉर्मली हम कर सकते हैं डायग्नोज, इंजेक्ट किया इंसुलिन, दैट्स इट, है ना. तो टाइप 2 ये काफी कम होती है नॉर्मली, ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है. पीसीओएस सुना है? उस केस में आपका टाइप 2 के चांसेस बहुत होते हैं. हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. क्लियर है? So this is about the different kinds of the diabetes. Next is the term diabetes insipidus. What is diabetes insipidus? सिर्फ सुना हुआ है. So diabetes insipidus, डायबिटीज में क्या होता है, वो थर्स्ट पेशेंट क्या करता है, डायबिटिक पेशेंट बार बार यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसमें ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होती है. हमने हार्मोन एक पढ़ा था ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये क्या करेगा, DCT में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नॉट एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसे एनहांस करेगा. अब जब इसका लो लेवल है, लो एडीएच की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, ज्यादा कम होगी. दैट मींस आपका जो डाइल्यूटेड यूरिन है वो पास आउट होगा. तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस. तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका बहुत डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास आउट हो रहा है, बार बार यूरिन पास आउट होगा बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है वाटर की. क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, उन्हें थर्स्ट वाली कंडीशन अराइज होगी पेशेंट में, वो बार बार पानी पिएगा बिकॉज उसमें क्या यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है. सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द डायबिटीज इंसिपिडस. क्लियर है? अबाउट द पैनक्रियाज, व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड डायबिटीज इंसिपिडस. Formation of diluted urine. हमने क्या स्टडी किया है, लिख लो क्वेश्चन. So next is the next gland is the gonads. So what are gonads? The reproductive organs in humans or in organisms, they are known as the gonads. Testes in males and ovaries in females. सो हमने स्टडी किया सेक्स कोर्टिकोइड रिलीज हो रहे होते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सेक्स हार्मोन्स है, सेक्स कोर्टिकोइड्स हैं या एफएसएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ये सारे हार्मोन्स एक्ट करते हैं गोनाड्स पर so that they can form the haploid gametes. So what is the main purpose, main function of the gonads? Formation of gametes, na? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. मोस्टली जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करता है आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच, हमने कल स्टडी किया था ना, एफएसएच, एलएच, है ना. सो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स. एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, सो ये जो ऑर्गन्स है, ये जो आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये एक्ट करेंगे जाके गोनाड्स पे. फॉर एग्जांपल आपका एफएसएच है, एफएसएच जाके एक्ट करता है ओवरीज पे.
ओके, ओवरीज में फॉलिकल्स बनती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर है? तो वो जाके एक्ट करेंगे आपके ओवरीज पे। एफएसएच क्या करता है? व्हाट आर फॉलिकल्स, ये नहीं पता? सो क्लियर, बताती हूँ। ओवरीज में क्या होता है? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द फॉलिकल्स, डिफरेंट सेल्स। अगर ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है? तो यहाँ पे आपके डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे। एक सेल होता है जो सेंटर में मैच्योर हो रहा होता है, जिसे हम एग सेल बोलते हैं। उसके साइड्स पे आपके सेल्स की लेयर्स बनती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉलिकल्स, क्लियर है? तो एफएसएच क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाएगा। अब एक बार एफएसएच ने एक्ट कर दिया तो ओवरीज जो है वो खुद डिफरेंट हार्मोन्स बनाने स्टार्ट करेगी। ओवरीज कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? फर्स्ट इज द ईस्ट्रोजन। Estrogen hormone. Ovary will secrete the estrogen hormone, which is known as a female sex hormone. है ना? So main function of the estrogen is to control the secondary sexual characters in the females. Clear है? और the functioning of जो ovaries है उनको control करना. Second hormone which will be secreted by the ovary, those are luteinizing hormone. So ovary के अंदर inside the ovary present होता है corpus luteum. So corpus luteum क्या secrete करता है? Luteinizing hormone. Clear? सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक होना, सॉरी, एलएच तो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगा ना। कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन का, हाँ, इसका मेन फंक्शन क्या है? यूट्रस की वॉल है वहां पे जाके ये एक्ट करेगा, ठीक है? इट विल प्रिपेयर द यूट्रिन वॉल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनेगा, उसके बाद उसकी इम्प्लांटेशन होनी है इन द यूट्रस, तो ये जो है वो यूट्रल वॉल को प्रिपेयर करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन। क्लियर है? सो दो तरह के हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? सो टेस्टिस ने जो मेल हार्मोन सीक्रेट करने हैं, टेस्टोस्टेरोन। And testosterone is responsible for controlling the secondary sexual character in the males or formation of gametes. Okay. So these are the different organs produced, different hormones produced by the gonads. लिखते जाओ। So next is the placenta. What is placenta? The intimate connection between the mother and the developing child. हाँ, which helps in the nourishment of the developing child inside the uterus of the mother, है ना? तो वो जो connection है between the mother and the child, दोनों female और child के बीच में जो connection है वो क्या है? placenta. Clear है? So placenta act as an endocrine gland. Placenta बहुत सारे hormones secrete करता है. So first is the HCG, human chorionic gonadotropin hormone. HCG hormone, human chorionic gonadotropin hormone. बेसिकली ये एक्ट करेगा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन पे। क्लियर है?
Next is the progesterone. स्टार्टिंग में क्या होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओवरीज में कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है, दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज्यादा अमाउंट चाहिए प्रोजेस्टेरोन की फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तब क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो खुद सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन. क्लियर है यहाँ तक? लास्ट इज द रिलैक्सिन. रिलैक्सिन हार्मोन जब लास्ट एज आएगी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन टाइम, जब पार्चुरेशन वाला टाइम आना है, तब क्या होगा, प्लेसेंटा विल सीक्रेट द रिलैक्सिन हार्मोन. रिलैक्सिन क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द वाइडनिंग ऑफ द यूट्रल वॉल्स और वाइडनिंग ऑफ द यूट्रल कैविटी. क्लियर है? सो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा. So this is all about the different endocrine glands and the different hormones secreted by the endocrine glands.